Participants, please mute yourself. मोबाइल से किया ना तो ये शेयर स्क्रीन के टाइम पे ये ऑप्शन ही नहीं आते हैं। हाँ नहीं आते, कल मैंने बहुत किया प्रॉब्लम हो रहा था, मैंने म्यूट करके रखा था मेरा, और फिर अगर वापस अनम्यूट करना है तो बंद करो शेयर स्क्रीन और वापस Vishakha madam, can we start? Yes, ma'am. Yes. Please. Okay. हाँ चलिए। Very good morning, everyone. Hello. Am I audible, ma'am? Yes. My voice is clear? Yes, yes. Yes. Very good morning, respected resource person, CMA Neha ma'am, Tejal ma'am, respected chairman respected chairman of Bharat Friends Association Bharat sir, in charge principal Dr. Neetu Kapoor, IQAC coordinator Farida ma'am, staff secretary Dr. Savita Panjam, all faculty members, students, a warm welcome to everyone for today's session on costing in industries organized by IQAC and Department of Accountancy of Bharat College of Arts and Commerce. I, Assistant Professor Vishakha Torne, pleased to welcome you all for today's session. With the increasing change in the industries and complexities of business, costing becomes important for management to take decisions, planning, and control. Different industries adopt different methods of asserting cost of their product depending on the nature of production and the type of output. So, in today's webinar titled Costing in Industries, we are going to learn about costing process adopting by different industries. Now I request our in-charge principal, Dr. Neetu Kapoor, to address the audience. Over to you, ma'am. Very good morning. Warm morning to today's resource person, my TL, also my trainer, my teacher in the costing industry, CMA Neha Bhagwat. Our co-associate Tejal, she'll also be there as a part of presentation today. I welcome both of my friends and teachers to this session of on costing in industries. Hearty welcome to my students, also my colleagues from office who have joined today for this session. It's really a happy moment to have my friends over here who actually have been pioneer in the costing industry, who have worked very hard or who have dealt in almost all the sectors in ascertainment of costs. To talk shortly about what is costing and how costing is important in this competitive era where your selling price is determined based on cost.
you won't be able to reduce the sales price unless until you are able to manage cost. What is important is cost management under this scenario. So today's session, considering the impact of COVID on all the industries, we need to first understand what is costing, how costing is done in various industries. We have arranged this session. I thank Sandesh sir and Vishaka madam who have taken lead in organizing it. I'm also thankful to Neha ma'am and Tejal ma'am for taking initiative and accepting our invitation and agreeing to help you all to understand. Today's session is a basic introduction to costing and how cost is ascertained in various industries. You would find it very interesting. Yesterday when I was having a discussion with Neha ma'am, actually we were having trial. I just saw her slides. Every slide has a meaning with a local example, our example that we do in our day-to-day life, and then connecting it to the industry, how industry do costing in different different cases or different types of industry or different types of products. So this is how we are going to engage ourselves today in costing. Neha ma'am, thank you once again for accepting this invitation and guiding us today on costing methodologies and techniques of costing. At the end, she would also conclude on career in costing, how far you can go into costing, or what would be the departments where you can serve when you do costing. So thank you, Vishaka ma'am, for giving me this opportunity to talk to all. I hand over the charge to you back again. Thank you, ma'am, for your inspiring words. It's a time to call upon BMS coordinator to introduce our today's resource person. Over to you, Sandesh sir. Good morning, one and all. This is Professor Sandesh Sambe from the Department of Management Studies. It's privilege to introduce our today's resource person for this session, CMA Neha Bhagwat and Miss Tejal Rajgo. To talk about the Neha ma'am, ma'am is a commerce graduate and a fellow member of the Institute of Cost Accountant of India, Chartered Institute of Management Accountant UK. Ma'am is a qualified company secretary, carries an audit and a consulting experience of 12 years in costing disciplines. Miss Neha Association includes the audit relationship between the leading corporates and MNCs. Today we are also having with us another speaker, that is Miss Tejas Rajgo. To talk about the Miss Tejas Rajgo, ma'am is a commerce graduate and cost accountant finalist. Ma'am has an 9 years experience in audit and consultancy in costing discipline. Miss Tejas Association includes the audit relationship between the leading corporate and MNCs. So once again, I welcome both the resource persons and hand over charge to the Neha ma'am and request her to start with the session. Neha ma'am, over to you. Thank you. Good morning, one and all. First of all, I would like to thank the IQAC and Department of Accountancy of Bharat College of Arts and Commerce, to all the professors who have given us this opportunity to come here and share our thoughts with you. I'll just share the screen. Is the screen visible? Yes. Okay. So now, as briefly Neetu ma'am had explained as to in the COVID scenario why costing is required, what is it? Particularly, we will be taking our day-to-day examples and then we will try to connect it with the industry. So to start with costing, why basically this topic of costing is required? Firstly, we need to understand that. So let us go from the economical background of it. So what it says is economics is a science which studies human behavior as a relationship between ends and scarce means which have alternative uses. Now in this definition, we will focus on three main areas, that is ends, scarce means and the alternative uses.
see, this entire thing of human behavior plays a very vital role in everything. Like you can see the middle picture where it was goals and dreams, resources. The combination of both put together becomes very tricky to balance. मैम आवाज नहीं आ रहा है आपका. 1 second. Now it is okay. Hello. Now it is okay. Yes. Yes. Okay. So I was saying कि goals and dreams put together with resources to balance this is very tricky. Like let us take a simple example with respect to human behavior. We use mobile phone today. आज के date में we are in the touch screen or you can say era. So now if somebody gives you a touchpad wala phone, will you be ready to use? Of course no. Because now what you prefer is a touch screen phone. Not only touch screen, but what you will see in that also, what are the versions, what is the camera resolution, what will be the RAM, what will be the operating speed, and other features of it, right? So there is never an end to it. So now this, for buying this mobile, what will we need as an individual? We will need money. This is from our perspective. This mobile phone, what we buy, it becomes one of the resource which we may use. Say now you are using this mobile phone to attend a lecture. You are using it for your study purpose, your entertainment purpose, or maybe for any other purpose. Now, this mobile manufacturing company, say Samsung or Apple, if we see from their perspective, they have to sell this mobile. But while selling this mobile, they first need to manufacture this. So for manufacturing this mobile, they will need resources. So now what will be these resources will be? Say for you will need the body of the phone, the screen, internal chips, camera. This will be a kind of a material that they will need. Now, along with this material, they will also need some machinery and as well as men who will work on those machines to assemble this phone into one handset, right? So now, what will be the resources from the perspective of the company? Like for Samsung or Apple, the resources will be basically the material, the machine, the factory layout, or the persons who are going to work on that machine. So these are our resources. Now, these resources are very scarce. Like you cannot have everything in ample. Like जो चाहिए जितना चाहिए उतना हमेशा नहीं मिलता है. It will be scarce. Like to give a very simple example, last year we were in this lockdown scenario, right? At that point of time, many a times we had a situation whereby there were money in our pocket. We had money in our pocket to spend, but in the local shop, एक मैगी का पैकेट या एक बिस्किट का पैकेट मिलना itself was difficult. Why? Because at that point of time, there was a scarcity of these resources. So it becomes very important to use these resources very carefully. Now, another dimension to these resources is these resources has multiple usage. Like to give a simple example of coal. जो coal होता है ना, that can be used for industrial purpose. Trains में भी use होता है as well as for household purpose भी use होता है. So now ये जो limited resource है, how will you categorize it or bifurcate it और उसको किस तरीके से आप use करोगे? So इन सब resource के लिए you need to do planning. Okay, so we understood that there are human wants which is never ending. To satisfy these human wants, we have resources. These resources are scarce and these resources also have an alternative usage, right? So इन सब चीजों में जो focal point है वो है resources है. And this resources plays a very important role in costing. Because costing का जो topic है ना, उसमें ये resource management जो होता है, that उस पे focus रहता है. उसी के accordingly we convert it into monetary terms to assess the cost or an expense. So this is a brief background as to why this costing ka topic comes into the picture. Now we will just try to understand what is the history of this costing discipline. When this subject of costing actually came into consideration. In the early 20th century, when there was World War I and World War II, this topic got an importance. वो time पे during the war scenario, government को, like countries के government को, it became very important that they wanted to buy defense material. Now to buy this defense material at that point of time, इतना competitive market नहीं था. They had to bid and get this. And वो bidding process क्या होता था? It used to be cost plus margin method. So then there was a question कि what will be this cost? So then this field got an importance कि no,
there is something that we need to cost, and it has to be done properly, scientifically, and then that cost needs to be calculated. So this is a general history as to how this subject of costing got its importance. Coming next, how this subject came into our country. Like before independence, there was no institute, formal institute for this costing subject. Earlier, they verified people from Chartered Institute of Management, London, and the Defense Services. These people came together in Kolkata and formed this institute called as the Institute of Cost Accountants of India. And this institute is under the Act of Indian Cost, the Institute of Cost and Works Accountants of India, 1959. So this is the background, and this institute gives you the formal education of the costing subject. Okay. So now with the background as to why we do costing, with the understanding history of costing, now we will come to the core subject of costing. So what actually is this costing? Generally, costing and expenses are two terms which are used interchangeably. बट इन दोनों में डिफरेंस होता है. इट इज लाइक अ सिंगुलर एंड प्लूरल थिंग. एक्सपेंसेस क्या होते हैं? खर्चे होते हैं. मानो आज के दिन में यू डिसाइडेड टू गो आउट ऑफ योर हाउस. ओके, सो आप दिन भर में जब आप बाहर निकलते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल नीड समथिंग टू कम्यूट. से यू टेक अ ट्रेन और यू टेक अ ऑटो और मे बी योर व्हीकल, राइट. देन आप अगर बाहर गए हो तो कुछ ना कुछ आप खाओगे, तो आपके स्नैक्स के एक्सपेंसेस आएंगे. फिर लॉकडाउन में इतने दिनों के बाद बाहर निकले हो तो शॉपिंग तो बनता है, तो कुछ ना कुछ शॉपिंग करोगे. And then at the end of the day you come back. So ये पूरे दिन में आपने कुछ expenses किए हैं, right? So this multiple expenses को when you put together, that will become your cost. So it's simply like बहुत सारे खर्चों को जोड़ के जो एक हो जाता है वो आपका खर्चा हो जाता है. से आज के दिन भर में you have spent say 1,000 rupees. So 1,000 rupees was the cost incurred by you, but this 1,000 rupees आपने किस तरीके से इनकर किया? आपने कम्यूटिंग के लिए किया, स्नैक्स के लिए किया, शॉपिंग के लिए. This were the various expenses. So like this is a very generic definition of costing. Now let us see what is the technical definition of costing. The creation, operation, alteration, and cessation of every action and function in an organization all consume economic resources. Measuring, accumulating, and assigning those resources to the organization's various process and outputs allows the structure and operation of the organization to be explained, understood, and improved. Costing, the accounting term that embraces these processes and expresses them using money as a common language. So अभी जो मैंने आपको example दिया था, that was in a generic हमारे day-to-day life के बारे में. But now what happens in industries? Industries में generally if you talk from the manufacturing या production setup के accordingly, एक raw material लिया जाता है. Raw material के ऊपर कुछ processing होता है, उसका form change होता है, and then that product is being sold. So जो first paragraph है which talks about the creation, operation, alteration and cessation, it talks, this is what it does, कि किसी भी material को लो, change its form and make it into a new product. Okay, and ये सब करने के लिए हमें क्या लगता है? तो we need resources like your raw material, men, machine, ये सब resources हो गए. Now ये जो भी activity हम लोग ने की like converting a raw material to a finished goods, ये सब करते समय we come back to the concept of खर्चे and खर्चा, right? आपने काफी खर्चे किए, मटेरियल खरीदा उसके लिए you had to spend, आपने मशीनरी लगाई उसके लिए you had to spend, आपने कुछ लेबर्स एम्प्लॉय किए उसके लिए you had to spend, right? तो ये जो सारे खर्चे हैं ना, it becomes important कि इसको सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि आपने कितना खर्चा किया है, right? एंड ये जब भी खर्चा आपको पता चलता है कि ये मैंने खर्चा किया है, तो आपने मानो एक सेटअप का पूरा खर्चा किया, फिर आपको वो असाइन करना भी आना चाहिए कि मैंने किस चीज के लिए कितना खर्चा किया. लाइक अभी हम लोग के अपने एग्जाम्पल में हमने लिया था कि 1,000 रुपीज वी हैव स्पेंट, बट अगर आपने कहीं पे नोट ही नहीं किया रहेगा कि 1,000 रुपीज आपने किस तरीके से स्पेंड किया है, सो एट द एंड ऑफ द डे यू ओनली नो यू हैव स्पेंट 1,000 रुपीज, बट इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो कि वो 1,000 रुपीज आपने कितना कम्यूटिंग में स्पेंड किया, कितना स्नैक्स पे स्पेंड किया, कितना शॉपिंग पे स्पेंड किया. सो ये जो सब स्टडी है ना, दिस एवरीथिंग इज गेटिंग कवर्ड इन कॉस्टिंग, राइट? तो इसी का जो टेक्निकल एंड शॉर्ट नेम है कॉस्टिंग है, बट इट इन्वॉल्व्स ऑल दिस प्रोसेसेस एंड दिस इज nothing but a representation in monetary terms. So this is a brief introduction of costing.
Now Tejal will take ahead with you for the other topics. Okay. Hi, good morning, all of you. As Neha discussed about the kharcha and kharche, so same way in industry spend the money for manufacturing the products or goods or render the services. It's called the cost of for that. So those cost elements are what? Material, labor, and overheads. So let's discuss one by one. What is the material cost? So the for finished goods we need a raw material like input. So these inputs are converted into the finished goods or finished products. So these material are passed through the various processes and become the finished products. So those inputs are the my raw material for for that finished products. Uh, Now these material pass through the various processes. We need labors and machines. So whatever labor are involved in that process, we pay for industry pays some monies to them like salaries or wages. That is my labor cost. Now machine cost means रिपेयर मेंटेनेंस मशीन के लिए रिपेयर मेंटेनेंस तो लगेगा, फिर उसका डेप्रिसिएशन जो होगा, देन फैक्ट वो जो मशीनरी जहाँ पे रखा है और जहाँ पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं, दैट इज द फैक्ट्री बिल्डिंग. तो फैक्ट्री बिल्डिंग रिलेटेड रिपेयर मेंटेनेंस, इंश्योरेंस एंड फैक्ट्री में जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है जो कि प्रोडक्शन के रिलेटेड होता है, ये सब कॉस्ट को कंबाइन करके बनता है ओवरहेड्स. ओके, तो एक एग्जांपल के साथ चलते हैं पार्ले जी बिस्किट के बारे में. ठीक है, तो अभी बिस्किट बनाने के लिए हमें क्या लगेगा? तो सबसे पहले तो मुझे लगेगा एक इंग्रेडिएंट लगेगा एंड रेसिपी लगेगा. तो इंग्रेडिएंट क्या होगा मेरा? तो शुगर है, मैदा है, ऑयल है, मिल्क है, ये सब मेरे इंग्रेडिएंट है. मतलब कि मुझे बिस्किट बनाने के लिए ये इनपुट्स लगेंगे जो कि है मेरे रॉ मटेरियल्स. नाउ ये रॉ मटेरियल्स हमें क्या करना होगा? वी पुट टुगेदर इन वन बाउल एंड मिक्स इट वेल, एंड देन नेक्स्ट प्रोसेस में हो जाएगा जो कि है मेरा मोल्डिंग. तो ये जो बैटर मैंने बनाया है उसको मैं मोल्ड में डालूं, देन वो मोल्डिंग को मेरे को बेक करना है इन ओवन. देन उसको कूलिंग टाइम देना है एंड उसके बाद ही बिस्किट को पैक किया जाएगा. ओके, सो ये सब प्रोसेस के लिए मुझे लेबर्स भी लगेंगे, पर्सन्स भी लगेंगे जो कि मिक्सिंग करेगा, मोल्डिंग करेगा. ओके, तो ये जो मुझे लेबर्स लग रहे हैं उसको जो पे करना है दैट इज माय लेबर कॉस्ट. और जो मटेरियल लगा जैसे कि शुगर, मैदा, ऑयल, मिल्क जो है वो हो गया मेरा रॉ मटेरियल. उसके लिए जो भी मैं पैसा पे करूंगी दैट इज माय रॉ मटेरियल. देन ये सब के लिए मुझे ओवन भी लगेगा, जैसे बेक करना है मुझे ओवन लगा. कूलिंग के लिए मुझे कोई मशीनरी लगी. तो ये सब जो मशीनरी लगता है उसके रिलेटेड जो खर्चे हो गए कि जैसे कि रिपेयर मेंटेनेंस हो गया ओवन का वगैरह, इंश्योरेंस हो गया उसका. तो ये सब कॉस्ट है वो है ओवरहेड. और ये पार्ले जी बिस्किट अगर बनाने के लिए मैंने एक बिल्डिंग लिया है उसका रेंट वगैरह रहेगा, वो बिल्डिंग का जो डेप्रिसिएशन है, वो बिल्डिंग के रिलेटेड मुझे जो भी खर्चा लगता है जो इनडायरेक्टली मेरा पार्ले जी बिस्किट बनाने के लिए जो खर्चे लगते हैं वो सब मेरे हो गए ओवरहेड. ओके, नाउ अभी चलते हैं कि बिल ऑफ मटेरियल. तो बिल ऑफ मटेरियल में क्या कंटेंट होते हैं? तो ये जो मुझे बिस्किट बनाना है, सपोज मुझे एक पार्ले जी बिस्किट, एक पैकेट ऑफ पार्ले जी बिस्किट बनाना है, तो उसके लिए मुझे क्या लगेगा? तो मैंने उसका कंटेंट लिया कि सपोज मुझे मैदा जो लग रहा है वो एक पैकेट बिस्किट बनाने के लिए 2 कप ऑफ मैदा लगता है, हाफ कप ऑफ शुगर लगता है, 1 कप ऑफ मिल्क लगता है एंड 2 टेबलस्पून ऑफ ऑयल लगता है. तो ये जो कंटेंट्स होते हैं ये कंटेंट्स हमें मिलते हैं बिल ऑफ मटेरियल में. तो बिल ऑफ प्रोसेस क्या है? तो अभी ये जो रेसिपी है पूरी,
कि पहले मुझे मिक्सिंग करना है, फिर मोल्डिंग करना है, फिर उसके बाद उसको बेक करना है। तो ये रेसिपीज मिलती है बिल ऑफ प्रोसेस में। अभी ये जो मटेरियल है वो स्पेसिफिक टाइम के लिए हर एक प्रोसेस के अंदर रहता है, ये भी मेंशन किया ये भी कंटेंट हमें बिल ऑफ प्रोसेस से मिलता है। जैसे कि सपोज ले लो कि मुझे मिक्सिंग वेल मिक्सिंग करने के लिए मुझे लगता है 3 से 4 मिनट, तो ये हमें मिलता है बिल ऑफ प्रोसेस में। मुझे बेक करना है, बट कितना टाइम तक बेक करना है, मुझे 10 मिनट्स तक बेक करना है, दैट आल्सो कवर्ड इन बिल ऑफ प्रोसेस। सो let's summarize in short कि bill of process and bill of material are nothing but the standard parameters for production of the goods. ओके, सो अभी हम लोग ने देखा बिल ऑफ मटेरियल क्या है, बिल ऑफ प्रोसेस क्या है एंड कॉस्ट एलिमेंट्स क्या है। जैसे एलिमेंट्स हो गए उनका बिहेवियर भी आता है, सिमिलर टू ह्यूमन बिहेवियर कॉस्ट के भी बिहेवियर होते हैं। तो these behaviors are categorized in three natures, that is variable, fixed and semi variable. अभी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? अगेन फॉर दिस you take your day to day life example and then Sejal will run through a technical example. वेरिएबल में नाउ जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग में बोला था कि सपोज आज के दिन आप घर से बाहर निकलते हो, तो मोमेंट यू स्टेप आउट ऑफ द हाउस यू नीड टू कम्यूट। तो कम्यूटिंग के लिए आपने मानो कुछ गाड़ी हायर की, या फिर आपने ट्रेन बुक किया, या फिर ऑटो बुक किया। सो व्हाई डिड यू इंकर दैट एक्सपेंसेस? बिकॉज यू मूव्ड आउट ऑफ द हाउस। सो इम्पोर्टेंट इंसिडेंट्स क्या है? अगर आप घर से बाहर निकलते हो तो ही आपका ये खर्चा होता है। सो इन प्रोडक्शन टर्म्स या टेक्निकल टर्म्स में हम लोग बोले तो वेरिएबल कॉस्ट आर दोज एक्सपेंसेस वेयर ओनली व्हेन यू प्रोड्यूस दिस एक्सपेंसेस विल बी इनकर्ड, एंड इनका रिलेशन जो है ना वॉल्यूम में, वो प्रोडक्शन के साथ डायरेक्टली कोरिलेटेड होता है। सो टू से वेरिएबल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ एलिमेंट which tends to directly vary with the volume of activity. So अगर एक्टिविटी होगा तो ही ये खर्चा होगा, अदरवाइज ये नहीं होगा। नेक्स्ट बिहेवियर टू दिस इज द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट इज दैट एक्सपेंस जो आप खर्चा ऑलरेडी कर चुके हो, भले आप उसको इस्तेमाल करो या ना करो, बट दैट एक्सपेंसेस हैव बीन इनकर्ड फॉर यू। लाइक लॉकडाउन होने के पहले आपने मानो रेलवे का पास निकाला था, ओके सो आपका जो रेलवे पास होता है आपने 1 मंथ में निकाला। नाउ वेदर यू बोर्ड अ ट्रेन और यू डोंट बोर्ड अ ट्रेन, आपका जो मंथली पास का खर्चा है वो तो इनकर हो चुका है, राइट। सिमिलर टू दिस वी कैन आल्सो टॉक विद रिस्पेक्ट टू बुक्स। बुक्स तो आपने खरीदी पढ़ाई करने के लिए, बट आप पढ़ाई कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, उसमें देयर इज मतलब आप उसका कॉस्ट आपका वेरी नहीं होगा। बुक परचेज करते समय आपने परचेज कर लिया ना, सो दैट बिकम्स योर फिक्स्ड कॉस्ट। सो fixed cost is the cost which does not vary with the change in the volume of activity in the short run. These are also known as a period cost. Period cost इसलिए क्योंकि जैसे अगर हम लोग रेलवे पास लेते हैं तो वो रेलवे पास कैसे रहता है, either it can be quarterly, monthly or annually, half yearly, right? So it is meant for a particular period and वो period के बाद the cost might change. Okay, so ये हो गया variable fixed. Next to this is a semi variable. Semi-variable cost is a combination of fixed cost and a variable cost. Semi-variable cost में कैसा होता है ना, इनके अंदर दोनों का प्रॉपर्टीज रहता है। फॉर एग्जाम्पल आप लेते हो एक नोटबुक लेते हो, आप परचेज करते हो, राइट। नोटबुक तो आपने परचेज किया है, बट वो नोटबुक के कितने पन्ने आप लिखने वाले हो उसके ऊपर उसका डिपेंड करता है, वेदर आप 1 साल में एक ही नोटबुक यूज करोगे या 3 साल के लिए एक नोटबुक यूज करोगे, राइट। सो semi-variable cost contains both fixed and variable element. They are partly affected by fluctuation in the level of activity. These are partly fixed and partly variable cost and vice versa. So now Tejal will run through the technicalities of this. ओके, तो अभी हम लोग ने देखा कि पहले फर्स्ट स्लाइड में हम लोग ने देखा कि कॉस्ट एलिमेंट्स क्या है, बिल ऑफ प्रोसेस क्या है, बिल ऑफ मटेरियल क्या है। अभी वही एलिमेंट के हम लोग देखेंगे कि उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिहेवियर क्या है। तो एक एग्जांपल के साथ चलते हैं। लेट्स हैव अ कप ऑफ चाय ओवर द डिस्कशन। सो एक चाय बनाने के व्हाट विल बी द इंग्रेडिएंट फॉर दिस? तो वाटर, मिल्क
tea powder and sugar. Okay, so all these are the my raw material, and its behavior is a variable cost. Okay, if अगर मुझे 1 कप चाय बनाना है तो मुझे सपोज वन वन थर्ड ऑफ द वाटर लगेगा एंड वन फोर्थ ऑफ द मिल्क लगेगा. अगर मुझे वही दो कप चाय बनाना है तो मुझे क्या उसका डबल करना पड़ेगा. इट मीन्स मेरा अगर प्रोडक्शन बढ़ता है देन मेरा वेरिएबल कॉस्ट भी उसके साथ बढ़ता है. वही एग्जांपल ले ले अगर मेरे कप और यूटेंसिल्स का, तो ये मुझे एक ही बार परचेस करना है. आइदर मैं 1 कप ऑफ चाय बनाऊं या 2 कप ऑफ चाय बनाऊं. सो वो मेरा प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं होगा, तो वो हो गया मेरा फिक्स्ड कॉस्ट. नाउ सेमी वेरिएबल कॉस्ट. तो सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा कि चाय बनाने के लिए मुझे गैस लगा, जैसे कि एलपीजी लगा मुझे, या तो फिर इंडक्शन अगर आप यूज कर रहे हो तो पावर या तो इलेक्ट्रिसिटी लगा, तो ये मेरा हो जाता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट. ओके, तो अभी एक एक पूरा प्रोसेस देखते हैं कि चाय कैसे बनता है. तो सबसे पहले हमें क्या लेना है, तो हमको यूटेंसिल्स लेना है, उसके अंदर हमें वाटर पोर करना है, 2 टेबलस्पून ऑफ द टी लीव्स डालने हैं. उसके बाद वो 5 मिनट्स तक मुझे उबालना है, एंड देन वो बॉईल होने के बाद उसके अंदर 1/4 कप ऑफ मिल्क ऐड करना है एंड 2 टेबलस्पून ऑफ शुगर ऐड करना है. उसके बाद उसको वापस मुझे 5 मिनट्स तक बॉईल करना है एंड देन मेरा चाय बन जाएगा. तो ये जो इंग्रेडिएंट्स मुझे लगे जैसे कि वाटर, मिल्क, टी पाउडर एंड शुगर, वो है मेरा रॉ मटेरियल जैसे कि हमने देखा ऊपर के स्लाइड में. एंड सेकेंड जो कि मेरा पोर्शन है कि मुझे वाटर कितना लेना है, मुझे मिल्क कितना लेना है, ये कंटेंट्स मिलेगा मुझे बिल ऑफ मटेरियल में. देन व्हाट इज द प्रोसेस, तो सबसे पहले बॉईल करना है, फिर उसको 3 मिनट तक मुझे या तो 5 मिनट तक उसको बॉईल करना है, एंड देन मुझे मिल्क एंड शुगर ऐड करना है, देन और अगेन 5 मिनट्स तक बॉईल करना है. दैट इज माय बिल ऑफ प्रोसेस कि मुझे कौन से प्रोसेस में कितने टाइम तक मटेरियल को रखना है. ओके, So this was connection of your bill of material, bill of process in relation with the behavior of the cost. Okay, so now आगे चलते हैं. Now we are coming to methods or types of costing. So ये जो methods है, these are broadly categorized into 2 things: specific order costing and operations or process or period costing. उसका further bifurcation of specific order is job costing, contract costing, batch costing. And operation costing का है process costing and operating cost और service cost. Now ये जो methods of costing है ना, generally this represents one kind of an industry. So जैसे जैसे we will discuss each and every topic, you will get a brief idea as to कौन से industries इसमें cover होते हैं. So the first is job costing. Industries which manufacture products or render services against specific order as distinct from continuous production for stock or sales use the job costing or job order method of cost accounting. Every order in job costing is separate and it is not essential that the same manufacturing operations be carried out or the same materials be utilized in respect of each. So ये job costing में होता क्या है, ये generally ना made to order type होता है. So now Tejal will just try to connect this with an example. So इसमें 2 important word है. First one is separate, means कि different services provide करता है, and second one is customer specific. तो separate services मतलब different services, distinct services means अगर हम लोग कैटरिंग का एग्जांपल ले लें, तो जैसे कि शादी का जो कैटरिंग होता है, किटी पार्टी का जो कैटरिंग होता है, जो कॉन्फ्रेंस के लिए जो कैटरिंग होता है, ये सब के अंदर डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है. जैसे कि शादी का फंक्शन है तो वही खाना हमको कॉन्फ्रेंस में नहीं चलेगा, तो ऐसे कैटरिंग तो एक ही है बट डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. नाउ सेकंड पॉइंट इज कस्टमर स्पेसिफिक.
तो कस्टमर स्पेसिफिक क्या होता है, जैसे कि शादी है तो आपने ऑर्डर किया कि नहीं बाबा मुझे गुजराती थाली ही चाहिए, मुझे महाराष्ट्रन थाली ही चाहिए, या तो मेरे को पंजाबी डिशेस ही चाहिए। तो ये हो गया कस्टमर स्पेसिफिक कि आप डिमांड करते हुए वो कैटरिंग वाला आपको वही सर्विस प्रोवाइड करता है। अभी कस्टमर स्पेसिफिक में इसका कॉस्टिंग करने के लिए हमें क्या होता है कि जो स्पेसिफिक ऑर्डर मिला रहता है वो अकॉर्डिंगली होता है। कुछ खर्चे ऐसे होते हैं कि जैसे कॉमन होते हैं, जैसे कि आपने गुजराती थाली, महाराष्ट्रन थाली, पंजाबी, वो सब में आप अगर पापड़ देखोगे, छाछ वगैरह देखोगे तो ये सब कॉमन होता है। बट डिफरेंट फूड्स रहते हैं, जैसे कि गुजराती थाली में अगर आप देखोगे तो ढोकला रहेगा, थेपला रहेगा, तो ये एंड महाराष्ट्रन थाली में अगर देखोगे तो पूरन पोली रहेगा, आमची वगैरह रहेगा। वैसे ही पंजाबी डिशेस में आप देखोगे तो पनीर रिलेटेड स्टार्टर्स, सब्जियां वगैरह रहेगी। तो ये सबका कॉस्टिंग डिफरेंटली होता है। जैसे कि पनीर का कॉस्ट अलग हो गया, उसके रिलेटेड जो भी मतलब वो खाना जो दिया जाता है उसका कॉस्ट क्या है। तो हर एक जॉब का डिफरेंट कॉस्टिंग होता है, वो स्पेसिफिक होता है कॉस्टिंग, वही वर्ड यहाँ पे लिखा गया है। Okay. So this was first method, that is job costing. अभी job costing का ही there is another branch you can say which is nothing but a contract costing. Contract costing or terminal costing, as it is often termed, is a variant of job costing system which is applied in business engaged in building or other construction work. The jobs are usually the contracts entered into with the customer. The contract run or number of years. So पहला जो जॉब होता है ना वो एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होता है, whereas contract costing जो होता है ना it may run into years. Now Tejal will explain you this with an example. ओके, तो जो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग होता है वो नंबर ऑफ इयर्स चलता है। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में अगर सबसे पहले हम लोग बात कर ले तो बिल्डिंग बनाने, ओके, तो बिल्डिंग जब भी बनता है तो उसमें क्या होता है, सबसे पहले पिलर्स खड़े किए जाते हैं, फिर उसके ऊपर स्लैब आता है, देन 4 वॉल्स आती है, देन उसके इंटीरियर्स आते हैं, जैसे कि विंडो लगा लो, किचन का प्लेटफॉर्म बना लो, उसके अंदर बेसिन वगैरह डालो, सिंक वगैरह होता है, तो ये सब उसका इंटीरियर बनता है। तो ये इसका एक पीरियड डिसाइड किया जाता है कि ये कितने पीरियड्स में बनेगा। अभी सिर्फ बिल्डिंग नहीं बनाना है, अगर हम लोग को उसके साथ मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्टर है उसके साथ अगर डिफरेंट फैसिलिटीज हम लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, जैसे कि स्विमिंग पूल हो गया, जिम हो गया, गार्डन हो गया, टेम्पल वगैरह हो गया, तो ये जो डिफरेंट प्रोसेसेस भी होती है, डिफरेंट जो फैसिलिटीज आपको जो मिलती है, तो ये सब फैसिलिटीज को एक कंबाइन करके एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट नंबर ऑफ इयर्स चलता है। तो हर एक पीरियोडिकली इसका कॉस्टिंग किया जाता है। ओके, नाउ सेकंड एग्जांपल लेते हैं कि ब्रिज का। ओके, तो आपने सीलिंग तो देखा होगा, तो अभी सीलिंग एक साल में तो बना नहीं, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले फैक्टर्स देखे जाते हैं कि मुझे क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करेंगे ब्रिज बनाने के लिए। जैसे कि आपका वेदर क्लाइमेट हो गया, वेदर हो गया, क्लाइमेट कंडीशंस के अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ता है कौन सा मटेरियल लगेगा, कितना टाइम लगेगा, हाई टाइड है, लो टाइड है, कौन से वक्त पे कौन सा काम किया जाएगा, लेबर्स अवेलेबिलिटी है, मटेरियल्स अवेलेबिलिटी है, क्योंकि उसके अंदर जो सीमेंट होता है वो डिफरेंट काइंड का होता है, तो वो सब अवेलेबिलिटी देखी जाती है, और ये सब फैक्टर्स देखकर फिर एक पीरियड डिसाइड किया जाता है, एंड फिर वो अकॉर्डिंगली ब्रिज बनता है। नाउ सेकंड एग्जांपल अगर हम लोग ले तो आप जब भी रोड ट्रैवल करते रहोगे तो वो टाइम पे आपको टोल पे करना पड़ता है। तो ये टोल चार्जेस जो होते हैं वो कैसे डिसाइड किए जाते हैं, तो वो एक्चुअली वो जो टोल चार्जेस होते हैं ना, वो गवर्नमेंट के लिए या तो कोई भी प्राइवेट कंपनी जिन्होंने रोड बनाया है उनका रेवेन्यू होता है। तो अभी रेवेन्यू लेने के लिए उनको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि मेरा रोड बनने का कॉस्ट क्या है। तो ये रोड बनने का कॉस्ट वो लोग मेजर करते हैं। तो फिर वो कैसे होता है कि जैसा मेरा रोड का लेंथ क्या हो गया, फिर मेरा 4 लेन है, 2 लेन है, वो अकॉर्डिंगली होता है, नेशनल हाईवे है, लोकल रोड है, ये सब पे ऊपर ये डिसाइड किया जाता है, और इसका कॉस्टिंग डिफरेंट होता है।
और वो अकॉर्डिंगली टोल चार्जेस डिसाइड किया जाता है एंड वो रिकवर किया जाता है। एक वन पॉइंट ऐड कि ये कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग में एक और होता है कि इनके अंदर ना माइलस्टोन्स बिल्ड किए जाते हैं, वेदर ये आपका रोड हो, ब्रिज हो या फिर बिल्डिंग हो, हर पर्टिकुलर लेवल के बाद इसका बिलिंग टेक्निक होता है। तो ये सब के लिए ये आपके पास कॉस्टिंग होना, कितना खर्चा किया उसका आप कैसे रिकवरी करोगे, अनलेस ये बेसिक डेटा आपके पास नहीं है, आपको आगे रेवेन्यू रिकॉग्निशन में भी इसमें इशू हो सकता है। सो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कॉस्टिंग बिकम्स इम्पोर्टेंट फॉर कॉन्ट्रैक्टिंग। नेक्स्ट टू दिस इज बैच कॉस्टिंग। अभी जो पहले एग्जांपल्स हम लोग ने देखे थे दैट वर जनरली लाइक मेड टू ऑर्डर काइंड ऑफ थिंग, बट बैच कॉस्टिंग क्या होता है, दिस इज लाइक मेड टू स्टॉक काइंड ऑफ थिंग, मतलब ये चीजें आप रिपीटेटिवली करते जाते हो। सो बैच कॉस्टिंग इज दैट फॉर्म ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर कॉस्टिंग अंडर व्हिच each batch is treated as a cost unit and costs are accumulated and ascertained separately for each batch. Each batch consists of number of like units. So now we will try to understand this concept with an example. तो बैच कौन सी इंडस्ट्री को प्रेफर करती है, तो जो भी फार्मास्यूटिकल्स है, फास्ट मूविंग जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है, तो ये सब जगह पे हमें बैच कॉस्टिंग देखने को मिलती है। तो अगर हम लोग बात कर ले कि बैच कॉस्टिंग की, तो अगर आपने देखा होगा तो सॉफ्ट ड्रिंक का अगर कभी डिस्कवरी पे देखा होगा तो फैक्ट्री का पूरा दिखाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि पूरा बल्क में एक सिरप वो सॉफ्ट ड्रिंक बनाया जाता है कि वो कोल्ड ड्रिंक बनाया जाता है। फिर क्या होता है कि एक बॉक्स होता है जिसके अंदर मल्टीपल मतलब नंबर ऑफ बॉटल्स रखी जाती है एंड ऊपर से वो पोर होते जाता है वो बॉटल्स के अंदर। फिर वो बॉटल आगे जाती है एंड उसका कैपिंग होता है और आगे जाती है एंड उसके ऊपर उसका नाम लिखा जाता है, जैसे कि कोक वगैरह का आप एग्जांपल ले लो, तो वैसे होता है। तो ये हो गया कि बैच कॉस्टिंग मतलब एक साथ बहुत सारी नंबर्स ऑफ यूनिट्स बने जाते हैं। अभी जैसे कि फार्मास्यूटिकल का एग्जांपल ले ले, तो फार्मास्यूटिकल में क्या होता है कि जो भी ये रहता है पाउडर्स रहते हैं वो बड़े कंटेनर में मिक्स किए जाते हैं। जैसे कि आपका ये ले लो पैरासिटामोल वगैरह ले लो, तो उसमें क्या होता है कि बड़े कंटेनर के अंदर एक पाउडर बनाया जाता है, देन वो पाउडर को टैबलेट के फॉर्म में बनाया जाता है और ये टैबलेट कंटिन्यूस चलती रहती है, बैच में बनती है। अगर आप ये स्लाइड में देखोगे तो आपको ये जो स्ट्रिप नीचे डाला हुआ है वहां पे आपको बैच नंबर भी दिखेगा। तो ये हर बैच का जो कॉस्टिंग होता है वो डिफरेंट होता है और ये बैच के अंदर जो लगा हुआ रिसोर्स होता है, जो मटेरियल होता है, वो सबका कॉस्ट एक्यूमुलेट करके एक वो बैच जो रन हुआ है उसका कॉस्टिंग होता है। So now ये बैच कॉस्टिंग में होता क्या है, see if you take a period, it need not be कि एक प्रोडक्ट आप एक ही बार बनाओगे, you make this product multiple times, right? So आपके पास मल्टीपल बैचेस का डेटा मिलता है। So ये डेटा कैसे होता है, again we go back and try to connect this with our bill of material and bill of process. उसके थ्रू इसका डेटा कैप्चरिंग होता है एंड अलग अलग बैचेस में किस तरीके से आपने कॉस्ट इनकर्स किए हैं उसका फिर बाद में कंपनी डज एन एनालिसिस एंड देन दे विल ट्राई टू सी कि बाबा व्हाई अ पर्टिकुलर बैच वाज गुड और वेदर अ पर्टिकुलर बैच में कुछ इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। गुड प्रैक्टिसेस एंड बैड प्रैक्टिसेस का वो लोग उसमें स्टडी कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट बैच कॉस्टिंग। Now next type of costing that we are coming into, the second category is the process costing. So process costing is that aspect of operation costing which is used to ascertain the cost of the product at each process or stage of manufacture. This method of accounting used in industries where the process of manufacture is divided into two or more processes. So batch costing में क्या होता है, आप एक बल्क बनाते हो एंड फिर उसको बैचेस में डिवाइड करते हो। जनरली प्रोसेस कॉस्टिंग में ना देयर इज अ कंटिन्यूअस प्रोडक्शन वाली जो एक्टिविटीज होते हैं उसमें you can see process costing. So now we will understand this with a very yummy example of batata vada and then we will go to the industry example. So बटाटा वड़ा का हम लोग ने 4 प्रोसेस के अंदर डिवाइड किया है।
फर्स्ट प्रोसेस इज पोटैटो को लेना है, उसको बॉइल्ड करना है एंड मैश करना है. दिस इज माय फर्स्ट प्रोसेस. नाउ सेकंड प्रोसेस. व्हाट इज सेकंड प्रोसेस? मैश पोटैटो को लेना है, उसके अंदर मसाला ऐड करना है एंड उसका गोला बनाना है. तो अभी यहाँ पे आप अगर पिक्चर देखोगे तो उसमें क्या है कि फर्स्ट प्रोसेस जो है मेरा मैश होता है, उसके बाद ही मेरा सेकंड प्रोसेस के अंदर वो मटेरियल जाता है. मीन्स माय फर्स्ट प्रोसेस आउटपुट इज माय इनपुट फॉर सेकंड प्रोसेस. नाउ थर्ड प्रोसेस क्या है? मुझे बेसन वगैरह लेना है, उसका बैटर बनाना है. और ये सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड प्रोसेस ये दोनों इंडिपेंडेंट प्रोसेस है. मतलब कि मैं सेकंड प्रोसेस एंड थर्ड प्रोसेस को एक साथ चालू कर सकती हूँ. तो ये जो मेरा सेकंड प्रोसेस का जो आउटपुट है कि जो मेरा गोला है एंड जो थर्ड प्रोसेस का मेरा आउटपुट है जो बैटर है, वो दोनों को फोर्थ प्रोसेस के अंदर कंबाइन करना है एंड फिर उसको फ्राई करना है. और ये बन गया मेरा बटाटा वड़ा. ओके. तो इसके अंदर अगर आप देखोगे तो मटेरियल मुझे लगता है पोटैटो, मिर्ची, लहसुन एंड ऑल दैट इज माय मटेरियल. ये प्रोसेसेस के अंदर जो भी पर्सन लगेगा दैट इज माय लेबर कॉस्ट. और जो भी मशीन वगैरह जैसे कि मेरे को गैस वगैरह का जो लगेगा दैट इज माय overhead cost. Okay. Now let's see one industry example is a cement industry. Okay. तो सीमेंट बनाने के लिए क्या होता है कि हम डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोन्स लगते हैं, पत्थर लगते हैं. तो वो क्या होता है कि बड़े बड़े पहाड़ रहते हैं, तो वह पहाड़ में एक्सप्लोजिव लगाकर उसे फोड़ा जाता है एंड पत्थर को क्रशर तक लाया जाता है. ये क्रशर मतलब क्रशिंग एक प्रोसेस है जो माइनिंग के बाद आता है. क्रशिंग के अंदर क्या होता है, वही बड़े बड़े पत्थर को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है. देन क्रशिंग के बाद प्रोसेस आता है रॉ मिल करके. रॉ मिल के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट टाइप ऑफ मतलब अलग अलग टाइप के पत्थर को मिक्स किया, मतलब जो सीमेंट बनाने के लिए जो मुझे रॉ मटेरियल लगता है ये सब मटेरियल को इकट्ठा किया जाता है एंड उसको स्पेसिफिक साइज में तोड़ा जाता है एंड उसको मिक्स किया जाता है. फिर यही सब ये जो इसका आउटपुट जो निकलेगा वो मुझे क्लिंकराइजेशन करके एक प्रोसेस होता है. उससे उसका आउटपुट होता है क्लिंकर. तो वो क्लिंकराइजेशन में क्या होता है कि ये सब पत्थर को बहुत गर्म मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर में गर्म किया जाता है, वो पूरा लिक्विड फॉर्म में बन जाता है. देन उसको कूलिंग किया जाता है. जब ये कूलिंग होता है उसके बाद वापस वो क्लिंकर बन जाता है. क्लिंकर मतलब कि आप अगर रेलवे साइडिंग पे अगर देखोगे तो वहां पे जो छोटे छोटे पत्थर रहते हैं वो होते हैं आपके क्लिंकर. अभी ये जब एक क्लिंकर बन जाता है फिर एक ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है. क्लिंकराइजेशन के बाद ग्राइंडिंग प्रोसेस होता है. उसमें ये जो क्लिंकर होता है उसको ग्राइंड किया जाता है एंड आपका सीमेंट बनता है. तो ऐसे पूरा चेन होता है. तो प्रोसेस कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक प्रोसेस के बाद दूसरा प्रोसेस, दूसरे के बाद तीसरा, वैसे कंटिन्यूस प्रोसेस चालू रहता है एंड लास्ट में आपका आउटपुट बनता है. फर्स्ट प्रोसेस का जो आउटपुट होता है वो सेकंड प्रोसेस के लिए इनपुट होता है. So this is about the process costing. Now coming to the last method of costing, that is operating costing. Operating costing applies where standardized services are provided either by an undertaking or by a service cost center within an undertaking. So what are the examples for this? Banks, insurance company, transportation organizations, hospital, railways, hotels, education institutes. आज की डेट में if we see our GDP में major contribution also comes from the service sector. So costing ऐसा नहीं है कि we will only look it from the manufacturing perspective, but costing सर्विस इंडस्ट्री में भी किया जाता है. वहां पे आपको इनपुट के लिए रॉ मटेरियल दिखता है, whereas because these are services, these are in the intangible form. So यहाँ पे क्या होगा, it is more human oriented. So उसके अकॉर्डिंगली इसका कॉस्टिंग किया जाता है. So जैसे वहां पे रॉ मटेरियल played a major role, यहाँ पे your employee cost will play a major role. So let us look at some of the examples of operating costing.
तो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग अगर नाम आता है तो सबसे पहले ट्रांसपोर्टेशन दिमाग में आता है. सो ओला उबर, तो आप ट्रैवल करते रहोगे ओला उबर में, तो ओला उबर एक चार्जेस आपको लगाता है कुछ किलोमीटर्स के लिए, वन ट्रिप के लिए. तो वो कैसे होता है, उसका डिसीजन कैसे होता है, तो जो भी आपका किलोमीटर्स है उसके ऊपर लगने वाला उनका पेट्रोल, फिर वो जो गाड़ी रहता है, वो कार का मेंटेनेंस, उसका टायर कॉस्ट, ये सब इंश्योरेंस, फिर वो जो ड्राइवर आता है उसको जो सैलरी पे की जाती है, ये सब कॉस्ट को एक्यूमुलेट किया जाता है एंड फिर उसके चार्जेस डिसाइड किए जाते हैं. तो ये चार्जेस पर किलोमीटर होते हैं, पर ट्रिप होते हैं, पर पर्सन भी होते हैं. जैसे कि सेकेंड एग्जांपल ले ले हम लोग होटल का, तो अगर आप होटल में जाते रहोगे तो वहाँ पे एक तो रहने की फैसिलिटी रहती है, सेकेंड फैसिलिटी आपके लिए रहती है कि खाना वगैरह, थर्ड फैसिलिटी अगर आपको बाहर घूमने वगैरह जाना है तो देन वो लोग क्या करते हैं, कार अरेंजमेंट वगैरह करके देते हैं. सो ऑल दिस फैसिलिटी कम इनटू द वन ऑपरेशन, दैट इज होटल चार्जेस. तो ये होटल चार्जेस वो फंक्शन वाइज हम लोग को चार्ज करते हैं. तो फिर होटल के अंदर क्या होता है कि वो ऑक्यूपेंसी के हिसाब से भी चार्ज करते हैं, कि जैसे आपके हॉलीडेज वगैरह होते हैं, तो हॉलीडेज के दिनों में है ना होटल ज्यादा आपको चार्ज करते हैं कंपेयर टू नॉर्मल डेज. तो एंड नॉर्मल डेज में वो कम चार्ज क्यों करती है, क्योंकि उनका जैसे कि नेहा ने फर्स्ट लाइन में बताया कि स्केयर मीन्स ऑफ द रिसोर्सेज, मीन्स कि मुझे फिक्स्ड कॉस्ट मेरे जो है वो बढ़ने नहीं चाहिए. उसके लिए वो लोग क्या करते हैं कि कम चार्ज करते हैं हम लोग को, ताकि उनका वैकेंट ना रहे रूम वगैरह. एंड ऑल्सो दिस सर्विसेज जो हम लोग बोलते हैं ना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट पेरिशेबल फॉर्म ऑफ एक्टिविटी. जैसे हम लोग बोलते हैं कि खाना पेरिशेबल है, वैसे सर्विस इज द मोस्ट पेरिशेबल थिंग. लाइक टू गिव एन एग्जांपल, मानो यू आर गोइंग फॉर से अ सैलून फॉर अ हेयर कट, पार्लर में आप जाते हो. सो व्हेन डू यू गो, व्हेन यू से यू प्रेफर वन पर्टिकुलर पर्सन, अगर वो पर्सन वहां पे नहीं रहता है, देन यू डोंट गो फॉर हैविंग दैट हेयर कट, राइट? So आप वो एक्टिविटी को itself, your customer goes away the moment your service provider is not there. So this is one of the most perishable form of an activity. Okay, so till now we have seen methods of costing. Now we will see with respect to techniques of costing. Now all these techniques of costing are being used by the companies for decision making. So I'll just briefly explain you what these techniques are. Like first is marginal costing. I'll go back to our example of batata vada, so it will be like easy for me to explain you. So अभी जैसे वहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट क्या हो गया बटाटा वड़ा के केस में, योर आलू एंड ऑल द अदर इंग्रेडिएंट्स बिकम योर वेरिएबल कॉस्ट, क्योंकि अगर आप बटाटा वड़ा बनाओगे तो ही आप उस कॉस्ट को इनकर करोगे. ओके, सो अभी ये मार्जिनल कॉस्टिंग में ना देयर आर सर्टेन टर्म, आप कंट्रीब्यूशन एनालिसिस करते हो, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस करते हो, मार्जिन एनालिसिस करते हो. सो ना कंट्रीब्यूशन एनालिसिस में आप क्या देखोगे कि कम से कम मेरा जो रॉ मटेरियल का खर्चा है, वेदर मेरा प्राइसिंग में उतना निकल रहा है क्या, दैट यू विल सी. क्योंकि मानो आपने अगर वड़ा पाव का स्टॉल डाला है, तो वड़ा पाव का जो स्टॉल डालने का खर्चा है वो फिक्स्ड कॉस्ट है. सो फिक्स्ड कॉस्ट इज लाइक योर सम कॉस्ट, यू हैव ऑलरेडी इनकर्ड दैट, राइट? सो व्हेन यू चार्ज दैट, जैसे कि जब भी लॉकडाउन था, सो व्हाट पीपल प्रेफर्ड कि एटलीस्ट जो मेरे पास मटेरियल बचा है, दैट मटेरियल शुड नॉट गो वेस्ट, कम से कम उसका मैं रिकवरी करूं. तो उसके लिए वो क्या करेंगे, तो कंट्रीब्यूशन एनालिसिस करेंगे. देन नेक्स्ट स्टेप टू दैट व्हाट दे विल डू, दे विल ट्राई टू सी ब्रेक इवन पॉइंट. सो ब्रेक इवन पॉइंट मतलब क्या होगा, ना कि कंपनी को फायदा हो रहा है, ना कि उनको नुकसान हो रहा है. सो व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेज, दैट दे विल ट्राई टू सी, चलो मेरा वेरिएबल कॉस्ट तो एब्जॉर्ब हो गया, नाउ आई विल ट्राई टू सी कि वेदर जो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट या सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, वेदर वो भी मैं किस लेवल तक या किस क्वांटम बेचने के बाद मैं उस ब्रेक इवन पॉइंट पे आ सकते हैं. सो दिस इन मार्जिनल कॉस्टिंग, प्राइसिंग के इस तरीके के डिसीजंस दे कैन टेक. नेक्स्ट टू मार्जिनल कॉस्टिंग इज स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल. स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड बजटरी कंट्रोल आर पार्शियली लिंक्ड. लाइक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या होता है ना, यू कम वन स्टेप डाउन एंड आप ना थोड़ा स्टैटिस्टिकल, यानी कि आप मटेरियल कंटेंट, लेबर कंटेंट, ओवरहेड कंटेंट को और ज्यादा स्टडी करते हो. वेयर बजटरी कंट्रोल में क्या होता है, बजटरी कंट्रोल में आप ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखते हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ सेम ऑफ अपना वड़ा पाव का स्टॉल है.
So now on vada pav ka stall, suppose if you have a stall somewhere near office premises या फिर court के बाहर, so you know जिस दिन offices are working or the courts are working, at that point of time you say need to prepare 100 batata vadas, right? So आपका budget उस दिन के लिए क्या हो गया? 100 batata vadas के accordingly you will budget everything. But suppose if there is a leave, then you know कि your business for that particular day is suddenly going to come down say to 25%. So उस दिन आप 25% बनाओगे कि those guys only who have come to roam around, only those guys will have. So ये आपने किया. तो आप क्या करते हो? एक ओवरऑल लेवल पे डिसाइड करते हो कि वर्किंग डेज पे मुझे 100 बटाटा वड़ा बनाना है एंड ऑफ डेज पे मुझे 25 बनाना है. So this portion is being taken care by budgetary control. Now what happens in standard costing with respect to this? कि जब आप डिसाइड करते हो कि आपको 100 या 50 बटाटा वड़ा बनाना है, गोइंग बैक टू आवर कंसेप्ट ऑफ बिल ऑफ मटेरियल एंड बिल ऑफ प्रोसेस, आप वहां से लिंक करते हो कि हाँ मुझे इतना बनाने के लिए मुझे इतना केजीज ऑफ आलू चाहिए, मुझे इतना मिर्ची चाहिए, इतना लहसुन चाहिए, दिस विल बी द क्वांटम ऑफ माय ऑयल, मेरे पास यूटिलिटी कितना होना चाहिए, मेरे पास गैस कितना अवेलेबल होना चाहिए. वो जो पैरामीटर्स होते हैं वो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में बिल ऑफ मटेरियल और बिल ऑफ प्रोसेस के थ्रू यू कैन डिसाइड whether it is for your 100 batata vadas or whether it is for your 50 batata vadas. Now अभी आपके पास ये स्टैंडर्ड पैरामीटर्स तो आ गए कि इतने आलू में मेरा इतना बटाटा वड़ा बनता है. सपोज किसी दिन आपके वो आलू खराब हो गए, राइट? सो वो पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर आपको एक्स्ट्रा आलू लगता है तो क्या हो गया, आपने जो एस्टिमेट किया था उससे आपको ज्यादा आलू लगे, तो वो पॉइंट ऑफ टाइम पे जो आपका वेरिएंस निकलता है, जो डिफरेंस निकलता है, that difference becomes your adverse variance, like a negative variance. क्यों? क्योंकि आपको उस दिन एक्स्ट्रा आलू लेना पड़ा, मे बी फॉर XYZ रीजन, जैसे यहाँ पे आलू खराब था या फिर आलू गिर गया या some other things. So if you try to compare your standards and actuals, और वहाँ पे जब आपको स्टैंडर्ड से एक्चुअल में ज्यादा खर्चा होता है तो वो नेगेटिव या एडवर्स वेरिएंस होता है, एंड उसके ऑपोजिट होता है फेवरेबल वेरिएंस. सपोज आपको पता है कि आपको 1 kg ऑफ आलू X रुपीज में मिलता है, बट ऑन सम डे इफ यू गेट दिस आलू एट अ चीपर प्राइस, तो आपको उस दिन थोड़ा सेविंग्स होगा. सो वो जब ये वेरिएंस आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के अकॉर्डिंगली स्टैंडर्ड कॉस्ट विज़ एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर करोगे, तो वो जो वेरिएंस आएगा दैट विल बी अ फेवरेबल वेरिएंस. सो based on this kind of parameters, company does many decision making. These are like a decision making tools for the company. So this was just an overview with respect to techniques of costing. So now अभी हम लोग ने costing देखा, elements देखा, उसके methods देखे, techniques देखे, but ultimately ये सब का use क्या है? So it is talking with respect to competitive advantage. So what it says is, competitive advantage occurs when an organization acquires or develops an factor or combination of factor that allows it to outperform its competitors. These factors include access to resources. These factors allows the business to generate more sales or superior margins compared to its market rival. So इसके लिए the best example जो अभी के इसमें है is with respect to the telecom sector. Telecom sector में क्या हुआ? If you just go back 4 to 5 years down the line, जब मोबाइल रिचार्ज करते थे या फिर इंटरनेट टॉपअप करते थे, तभी के चार्जेस if you try to compare after the launch of Jio has drastically come down. At one point of time, Jio was also offering you free. So why Jio could do this? Because they knew which was the market that they need to capture. They focused mainly on internet customer rather than a calling customer. So they had this kind of a backup data, and then they came out with their plans. And accordingly, all the other mobile operators also had to follow them. So this is how costing helps you to gain an overall competitive advantage. Okay. Now, this was the general background with respect to costing. But this costing का एक regulative background भी है. जब भी हम लोग costing करते हैं, costing is done from two purposes. One, for your internal management reporting, and another is for the regulation of government reporting. ये जो गवर्नमेंट रिपोर्टिंग होता है, ये होता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में. वहां पे देयर इज वन कॉस्ट ऑडिट ब्रांच. टू दिस कॉस्ट ऑडिट ब्रांच द कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट इज सबमिटेड. Like you all are aware with respect to financial reporting, like financial report में you have your
बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ इनकम स्टेटमेंट, राइट? वैसे ही कॉस्ट ऑडिट में भी एक पार्ट होता है, but the only difference between finance report and cost audit report is finance report is available to general public, whereas कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट में बहुत सेंसिटिव डेटा होता है कंपनी के प्रोडक्ट्स के बारे में, कंपनी के बारे में, इसलिए इट इज नॉट अवेलेबल टू द जनरल पब्लिक. सो ये कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट जो है, दिस आर बीइंग गवर्न्ड बाय द कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स. और ये जो रूल्स है ना, इनके 4 फॉर्म्स है. फॉर्म CRA1, CRA2, CRA3 एंड CRA4. अभी उसमें जो फॉर्म CRA1 है ना, this says how your cost records are to be maintained. So what are your cost records? हर चीज जो आप राइट फ्रॉम योर मटेरियल से लेके आप जो कन्वर्जन करते हो, उसको फिनिश गुड्स हो, उसको बेच रहे हो, सेलिंग, मार्केटिंग, ये सब कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कवर हो जाता है. एंड इसमें किस तरीके से आपको कॉस्ट कैप्चर करना है वो इसमें बताया जाता है. So that all these things like how to capture costs, how to accumulate those costs, that are being governed and told in CRA1. Form CRA2 is where the cost auditor जो होता है उसको company appoint करती है. And when the company appoints this cost auditor, company is supposed to intimate this appointment to the Ministry of Corporate Affairs. तो वो जो appointment का जो procedure है informing to the ministry, वो होता है CRA2 form के through. Then next is form CRA3. This is the main cost audit report which the cost auditor prepares. This is similar to what you see a auditor's report ना, वैसे ही cost audit report भी होता है. And इसका जो form है वो form CRA3 है. ये form CRA3 के अंदर annexures होते हैं. There are 11 annexures in total, and these 11 annexures are being broken down into 4 parts: Part A, Part B, Part C, and Part D. I'll just give a general overview as to ये parts में होता क्या है. Part A में you generally get a general information about the company as well as about the cost auditors. It also gives you the general business that the company is being doing. Like for example, अगर आप ये लेते हो, सीमेंट इंडस्ट्री लेते हो, तो वो सीमेंट में सीमेंट बेच रहा है, क्लिंकर बेच रहा है, या फिर कोई FMCG प्रोडक्ट ले रहे हो, गोदरेज ले रहे हो, तो वेदर इट इज सेलिंग सोप, गुड नाइट, पाउडर बेच रहा है, तो उसका सिर्फ एक लिस्टिंग आता है. बट ये जो प्रोडक्ट का लिस्टिंग जो डिस्क्लोजर होता है ना, दैट इज बीइंग डिस्क्लोज्ड एट अ CTA कोड लेवल या फिर HSM कोड लेवल. ये एक कोड होता है जो 8 डिजिट का कोड होता है. मतलब आज आप सपोज इफ यू से सोप, ये सोप जो है, सोप इज अ जेनेरिक टर्म जो विच वी यूज एज अ कॉमन लैंग्वेज, बट फॉर रिपोर्टिंग पर्पज इसके पीछे एक 8 डिजिट का कोड होता है. एंड जनरली ये जो 8 डिजिट कोड होता है, दैट इज बीइंग ग्लोबली यूज्ड, so that anywhere in the world if somebody tries to use this code, they know acha this code is representing the soap. So इस 8 डिजिट कोड बेसिस पे कंपनी का सारा एक्टिविटीज को लिस्ट डाउन किया जाता है. जो पार्ट बी होता है उसके अंदर जो भी एक्टिविटीज ऑडिट के अंदर कवर होती है, उसी के रिलेटेड में क्वांटिटी इंफॉर्मेशन और कॉस्टिंग दिया जाता है. व्हेन वी से क्वांटिटी इंफॉर्मेशन, इट इज नथिंग बट योर ओपनिंग कितना है, प्रोडक्शन है, सेल्स कितना किया है, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, या फिर आपका राइट ऑफ, राइट बैक, वेस्टेजेस कितना है, इसका सभी का क्वांटिटेटिव पैरामीटर्स में बताया जाता है. एंड इसी का जो वैल्यूएशन होता है उसको अब्रीच कॉस्ट स्टेटमेंट करके किया बोला जाता है. एंड दिस अब्रीच कॉस्ट स्टेटमेंट का हर एक लाइन आइटम किस तरीके से डिस्क्लोज करना है, दैट इज बीइंग डिस्कस्ड और डिटेल्ड आउट इन CRA1 रूल्स. जैसे पार्ट बी में वी टॉक ओनली विद रिस्पेक्ट टू मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी. जो पार्ट सी होता है, पार्ट सी में सिमिलरली वी टॉक विद रिस्पेक्ट टू द सर्विस एक्टिविटीज. जैसे आपके प्रोजेक्ट्स वगैरह जो होते हैं वो सारा पार्ट सी में कवर होता है. एंड देन द लास्ट पार्ट इज पार्ट डी. पार्ट डी में जनरली हम लोग जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस वगैरह देखते हैं, उसमें रेशियो एनालिसिस कवर होता है. एंड देन देयर इज वन रिकंसिलिएशन आल्सो, क्योंकि आपका एक जगह पे कॉस्ट रिकॉर्ड्स होता है, एक जगह पे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स होता है. इन दोनों के बीच में जो गैप्स होता है, जैसे आप बैंक रिकंसिलिएशन करते हो ना, वैसे ही कॉस्ट रिकॉर्ड्स और फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स का भी एक रिकंसिलिएशन बनाया जाता है. दैट आल्सो फॉर्म्स पार्ट ऑफ पार्ट डी. Along with this disclosure, दो और डिस्क्लोजर होते हैं. वन इज विद रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. ये भी आपका जो 8 डिजिट कोड बताया गया था उसी के बेसिस पे ड्रिल डाउन आता है. एंड लास्ट वन इज GST का, दैट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो है,
उसका भी पूरा रिपोर्टिंग, समराइज रिपोर्टिंग इसमें दिया जाता है। अब ये जो CRA 3 में रिपोर्ट जो कॉस्ट ऑडिटर बनाता है ना, वो ये रिपोर्ट देता है कंपनी के बोर्ड को, and then company files this report to the government, that is cost audit branch, in form CRA 4. So this is the brief regulatory background with respect to cost audit report. Now coming to what are the career avenues in costing. एक तो ये है रेगुलेटरी जो ड्रिवन है, दैट इज योर कॉस्ट ऑडिटर्स होते हैं। उसके बाद आप ये वेरियस जो अपने प्रोसेसेस देखे, बैच कॉस्टिंग है, प्रोसेस कॉस्टिंग है, इसके थ्रू जो भी कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, ही इज एन इंटरमीडियरी बिटवीन द शॉप फ्लोर रिकॉर्ड्स एंड व्हाट द बोर्ड वांट्स, या फिर बोर्ड का जो विजन या मिशन है उसको कनेक्ट करने का काम ये करता है। जो पर्सन कॉस्टिंग करता है ना, ही हैज टू लुक आउट ऑफ द ओवरऑल ऑपरेशंस ऑफ द कंपनी। मतलब ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ शॉप फ्लोर को ही देखता है, he also needs to look कि HR डिपार्टमेंट का कैसा ह्यूमन एलोकेशन होता है, या आपका मार्केटिंग डिपार्टमेंट कैसे करता है। सो दिस पर्सन हु इज देयर इनटू दिस रोल, या फिर कंपनीज में ये MIS डिपार्टमेंट करके होता है जो मैनेजमेंट को रेगुलरली रिपोर्ट देते हैं मंथली बेसिस पे। these people do this kind of an analysis. And also ये जो कॉस्टिंग हम लोग जो एक टर्मिनोलॉजी देख रहे हैं, दिस इज हार्ट ऑफ द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज स्टिल ब्रॉडर, जहाँ पे और भी एनालिटिक्स किया जाता है based on this costing data. So these are various avenues available in this costing field. So that's it from my side. Thank you. Thank you. Thank you, Neha, and thank you, Tejal. Thank you, madam. It was really pleasure hearing you both. Very nicely explained all the concept. मुझे आप लोगों से सीखना पड़ेगा अभी पढ़ाने के लिए. I could just realize that I have to come to you and then I should start teaching. Vishakha madam, over to Yes, you. ma'am. Yes, ma'am. Okay. Now I request Bunty sir to propose a formal vote of thanks. Bunty sir. Vishakha ma'am. Neha ma'am, actually the concepts which you have explained today are very clear to me. So I hope it is clear to every student, participant, and also to our faculties, because everyone is experienced. But the way I experienced your whole concept, it was very nice, and thank you for explaining in depth, also giving good examples. So thank you very much, Neha ma'am. And I would like to thank your colleague who has also given us time, and she has also explained all the concepts. And thank you, Bharat College Management, Bharat Friends Association Management, for giving us opportunity to conduct such a wonderful costing lecture, because I have been with the college for now around 2 years, and such a wonderful concepts we have come up today. So thank you very much. IQS, our in charge principal, Dr. Neetu ma'am, she has been motivating point for us. So every time she motivates us and encourage us to conduct such wonderful activity. Thank you, Neetu ma'am. IQSC coordinator, Farida ma'am, Dr. Savita Punjabi ma'am, and our BMS coordinator, Sandesh sir. Thank you everyone for conducting such a wonderful activity and giving us opportunity to learn something from the industry expert. All the participants who have participated today, I would like to thank everyone for being here today and giving your time and the opportunity to learn from the industry experience. So thank you everyone for being a part of today. In short, I thank each and every one of us today present. Over to you, Vishakha ma'am. Vishakha ma'am, can I Yes, ma'am. speak for a second? I'm Yes, thankful ma'am, to sure. my mentor, my guide in the profession, Narasimhan sir. He's been there continuously for the session, but I could not see him in the participant list. But I know that he is always there guiding and supporting us. Thank you so much, sir. Neha, once again, thank you so much. It was delight journey, an intellectual journey to costing, an overview of costing, well explained, covering everything in such a short span of time.
is really remarkable. Neha and Tejal, I'm really privileged to have friends like you, and it is really a pleasure, intellectual pleasure to hear something what you have delivered today. I think being teaching for such a long time, I wouldn't have done that justice what you could do. Thank you everyone for your participation, and once again we thank our today's speakers, Neha and Tejal. Thank you so much. Thank you, Thank ma'am. you. Thank you so much. Yes. everyone. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, everyone. So now I declare the session is over. Thank you, everyone. Thank you. Should I end the meeting, Vishakha Yes, ma'am? yes, ma'am. Yes, ma'am.